The first impression that comes to our mind about any college: tall buildings, big classrooms, large lobby areas, thick books, IT labs, assignments, class tests, and projects, nothing besides that. Every hour, minute, second spent here help us carving and shaping our persona, cultivating innovative mindsets for the challenging world. Learning is a lifelong process. Sharing knowledge, inculcating values of life, spark the innovative horizons of mind. Fun and frolic is the nature of every nook and corner here. A daily dose of thrill we are sure to get here. Good afternoon, everyone. On behalf of Placement and Training Cell, I, Shifali Chibbal, co-convener, welcome you all to Career and Media Series 2023. CMS is an interactive session with industry experts organized by DME Placement Cell to apprise students to the latest industry trends and scope in the media industry. I would like to take a moment and introduce Delhi Metropolitan Education to our viewers. Delhi Metropolitan Education is an A-grade premier educational institute affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University, New Delhi, and approved by the Bar Council of India. DME Media School is one of the most promising media institutes in the country. It offers BA in journalism and mass communication. It is recognized as a school focused on the growth of its faculty and the students through academic and co-curricular activities. Major flagship events and initiatives of the school include BG Varghese Lecture Series, peer-to-peer FDPs, International Film Festival SIFI, International Conference ICANN, and Vritika Convention of Media Students. Newly added to the list are VIS Vibrant India Series and now CMN. The Training and Placement Cell of DME Media School acts as an interface between the industry and the academia by felicitating professional opportunities for the students and organizing guest lectures and special sessions with industry experts and senior media educators. The Training and Placement Cell functions under the aegis of DME Media School. Therefore, as an extended activity of the placement cell, the DME Media School organizing interactive sessions with media experts. Now I request Dr. Amrish Saxena, Dean DME Media School, to welcome our guest. Thank you, Shefali. So this is a series, as has already been told, this Careers in Media series, the CMS lecture series that we organize in DME Media School every year. And this started obviously when this corona had struck, and that was the only communication. Online was the only communication. That is how we started as an online series. And after this corona phase was over, we continued with that. And this year we are having a mix of the offline and the online sessions. And as the basic concept goes, the objective of this CMS lecture series is to apprise the students as to what all is happening in different aspects on different platforms of media before they are entering into the media industry. So this is something which is being organized in the final year, in the final semester, for the students who entered the college in 2020, and now they are passing out from the institute in 2023. So, and this whole period 2020 to 2023 has been a period of corona and post-corona, and the impact is witnessed all over. Not only it has affected the teaching and learning process, it has also affected the media industry. So now we are into that phase wherein a lot of transition has already happened, but the students are mostly still in the phase of corona, in the sense that for almost 3 semesters they were having their online classes and all, and now it is becoming difficult for them to be in the physical space. But then anything which is happening has to take place in the physical space to whatever level we add the online thing, and that is how
we have decided to have a mix of online and offline, not only in this lecture series, but otherwise also we try to take the benefit of online, because online has its own merits, wherein we can join the experts who are either at different locations within the country or who are placed at locations in some other country. This whole series, the lectures are on different aspects, as I already said. Some are on the news industry, then entertainment industry, then the advertising industry. Because the students opt for different career options after they are getting a degree after 3 years from the institute. And we are happy. Then today Malika Malhotra is with us to have a lecture on, to have a, I mean, rather I should say not exactly the lecturing, but then to share her experience and to guide the students with regard to as to what all is necessary to be a good anchor, because always in every batch there are a number of students who are interested in anchoring, and particularly news anchoring. So some tricks of the trade will be available through Malika to the students, which they can use once they decide to join the news industry and in the capacity of anchor. So I'm looking forward having a nice session, having a fruitful session, and I welcome Malika to this session. Thank you all. Before I hand it Thank over you. to her, I would like to share a brief note about her profile with all of you. Malika Malhotra is a seasoned journalist and anchor with extensive experience in the news industry. With a keen eye for detail and a passion for storytelling, Malika has covered a wide range of topics from breaking news to in-depth investigations. She started her career as a reporter and quickly rose through the ranks to become a news anchor. Over the years, she has honed her skills in live reporting, anchoring, and producing news segments, earning her a reputation as a trusted voice in the industry. Miss Malika is known for her ability to engage with her audiences and deliver news in a clear and concise manner. Her professionalism and dedication to journalism has earned her numerous accolades, including several awards for her outstanding work in this field. She is also passionate about giving back to her community and is involved in several charitable organizations. A postgraduate from Cardiff University, UK, in international journalism, Ms. Malika is currently the primetime face of Zee News as she hosts Desh Hit at 6 p.m. and Aadha Din Pura Sach. Now I hand it over the session to Ms. Malika. Thank you for the lovely introduction, and thank you, Dr. Saxena. जिस तरह से आप explain कर रहे थे about the course, I think I can very well relate to it because I was also a student, and I know it's a very challenging journey. And I'm assuming that all the students that who have joined the session today, they are all final year students, and they're all set to go out and explore their opportunity. But I would also like to request, since this is an online session, I would request all of you, all the students who have joined the session, to please at least turn on your camera so that I can see your beautiful faces, and unmute yourselves whenever you have to ask a question, because I don't want it to start off this session as a lecture. Because lecture, अगर हम लोग physically आमने सामने होते, तो I think it would have been more beneficial. But because we have all joined online, so I would like to talk to you all, and I would like to answer to all of your questions, because I'm sure that आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि जब आप college से बाहर जाएंगे, और industry में, if you want to make a mark and if you want to make a space for yourself, how are you all going to do it? So if you all can hear me, if I'm audible to all of you, can I get a response from any one of you? आप सबको ना वीडियो राइट्स दे दिए हैं, तो आपको प्लीज कैमरा ऑन कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं आप सबको देख सकूंगी तो आई थिंक मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों से इंटरेक्ट करना, because right now all I can see is like a black screen and myself talking. So it will be great if I can see all of you, so that we can have an interactive session, so that we can all talk and discuss about whatever apprehensions you have, whatever questions you have in mind about the industry, about being an anchor.
क्या आप लोग सोच रहे हैं, क्या आपके मन में सवाल है? आई वुड लाइक टू हियर इट ऑल। आप लोग कैसे पत्रकार बनेंगे अगर आप लोगों के पास सवाल ही नहीं है? बिकॉज देखिए, लेक्चर तो मैं आप लोगों को दे सकती हूँ, बट आई डोंट थिंक दैट्स गोना हेल्प यू ऑल, बिकॉज आप मुझे अभी सुनेंगे, हो सकता है दैट यू माइट just note down some points, but I want you to talk to me, ask your questions. What are your thoughts about journalism? What made you choose this line of profession? Why did you enter into the field of journalism? That's all I would want to know from you all, so that I can help you, with your questions. Because जब हम स्टूडेंट्स थे और हमारे पास जब इस तरह से एक मौका मिलता था गेस्ट लेक्चर्स का, जब इंडस्ट्री के जाने माने लोग हमारे सामने आते थे, तो हम कोई मौका नहीं छोड़ते थे, हम उनसे कई सवाल पूछते थे और कोशिश यही होती थी कि उनके एक्सपीरियंस से हम कुछ सीख सके और शायद हमें एक डायरेक्शन मिल जाए कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। बिकॉज दिस इज अ वेरी कम्पिटिटिव फील्ड। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है। आपके जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोगों के साथ ना जाने कितने स्टूडेंट्स पैन इंडिया ग्रेजुएट होंगे, इंडस्ट्री में आएंगे, कोशिश करेंगे कि उन्हें जॉब मिले, लेकिन आप अपने आप को अलग कैसे बना सकते हैं वो आपके हाथ में। माइक ऑन कर सकती हो तुम अपना। Yes, sir. Thank you. हाय Ma'am, अंजलि। hello, ma'am. Ma'am, actually, currently I'm intern in Indian Express. ओके So, ma'am, इसमें like I have one question. Like मेरा experience social media handling में 9 months का है, and I want that कि मुझे आगे इस field में मैं आगे work करूं, तो दे आर आस्किंग लाइक कि आपको और भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। इफ अगर आप तो हमें मौका नहीं देंगे करने के लिए काम, लाइक नॉट फॉर लाइक ट्रेनिंग पर्पस आल्सो, तो हम इसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं? बिकॉज दे ऑल वांट कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, 3 साल का, तब हम आपको रखेंगे। तो मैम इसमें हम ये क्या आप कर कहाँ सकते की बात कर रहे हैं? आप न्यूज चैनल्स की बात कर रही हो अंजलि? हैं? यस मैम। कौन से? news channel. अच्छा, you applied for a job and this is what they told you, that you need to be more experienced, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। Yes ma'am, work experience, not internship experience. So how can I manage this? That's a very very good question अंजलि, and I think ये जो आप मुझे आपने जो सवाल पूछा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है। That's why I said initially in just the beginning of this session that this is a very competitive field. यहाँ पर आपके जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, एंड इमेजिन बी ऑन द अदर साइड, आप एक स्टूडेंट है, यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, यू आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ, और दूसरी तरफ एक इंडस्ट्री है या फिर एक चैनल है जो किसी टैलेंट को हायर करना चाहते हैं। दे वुड वांट द बेस्ट फॉर देमसेल्व्स, नो? सो इसीलिए वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक्सपीरियंस्ड हो, बट ये आपके लिए ट्रिकी जरूर हो सकता है, बट आपको जहां पर भी जो भी काम मिले, जिस भी फील्ड में मिले, बिकॉज किसी भी तरीके का काम आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। अगर आप सोशल मीडिया भी सीखते हो, अगर आजकल आप देखो न्यूज चैनल्स, दे आर एक्सपैंडिंग इवन डिजिटली। ऑल द न्यूज चैनल्स दैट यू सी, जो टेलीविजन चैनल्स हैं, बट दे आर ऑल वेरी एक्टिव ऑन यूट्यूब आल्सो नाउ। दे आर ऑल रनिंग देयर वेबसाइट्स सो नाइसली। आप देखो 24 आवर्स जो टेलीकास्ट है वो ट्विटर पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर चलता है। उसका रीजन यही है बिकॉज हम जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं वो डिजिटल ज्यादा है। आजकल के जमाने में लोग वैसे भी टीवी पर न्यूज देखना कम हो गए हैं, इतना कुछ आपके फोन पर अवेलेबल है, डिजिटली अवेलेबल है। सो वट एवर यू आर लर्निंग राइट नाउ, आप उस पर फोकस करो, उसको इतना अच्छे से करो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो देयर, वो अभी तक जो आपने काम किया है, जिस भी फील्ड में किया है, जहां पर भी किया है, वो उससे इतना इम्प्रेस्ड हो कि उनको आप में वो पोटेंशियल नजर आए जो आप में है। So for that you need to polish yourself, you need to work on yourself, और आपको अपने अंदर थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि आप सामने वाले इंसान को कन्विंस कर सको that I am the best man for the job or I am the best person for the job। तो वो आपको अपनी स्किल्स को एनहांस करना है। आप किसी के सामने जाओगे, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, अगर आप उनको पहले ही ऐसे दिखाओगे that you are not enough or the kind of work that you have done so far is not enough for the profile that they want, तो वो आप खुद ही रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज आपने अपने आप को इस तरीके से उनके सामने प्रेजेंट नहीं किया। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पर्सन हु इज गोइंग टू हायर यू। अगर आप उनको दिखाओगे, आप उन्हें कन्विंस कर पाओगे कि मुझ में ये पोटेंशियल है, मैं ये भी कर सकती हूँ या ये मैं करना चाहती हूँ, देन व्हाई नॉट? ऐसा नहीं है। तो अभी आप सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हो वहां पर,
No, ma'am. I am in corporate com department here. Mm-hmm. So Okay. it's my 2-month internship. So I'm working here in corporate com. I was So you're not able studying also, and you are doing this job also. internship also. No, no, ma'am. It's an internship. It's an internship. So this Yeah. internship will not get you a job in any news channel, but this will definitely help you enhance your talent, your skills, and explore yourself. कि आप और क्या कर सकते हो. मैं आपको कोई इस तरीके से कोई false hopes नहीं दूंगी कि आप जो अभी काम कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको जॉब मिल जाएगा. बट मेरा ये मानना है कि आप जो भी काम कर रहे हो आप उसको अच्छे से करो. And whenever you get an opportunity to be out there, find for an opportunity, because कई बार तो उस चैनल के दरवाजे तक भी पहुंचना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. बट वंस यू आर देयर, अगर आपको ये मौका मिला है कि आप अपने लिए जॉब ले सको, ये आपको मौका मिलता है, तो आप अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करो ताकि सामने वाले को लगे दैट यस शी हैज गॉट द पोटेंशियल, और वो आपको मौका देने पर मजबूर हो जाए. सो जिस तरह से आप यहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे हो, ट्राई टू गेट एन इंटर्नशिप इन अ न्यूज चैनल ओनली इफ दैट्स वेयर यू वांट टू वर्क. आप इंटर्नशिप भी वहीं पर करने की कोशिश करो rather than going for a job straight away. Why don't you start with internship first so that you can understand that how a channel works. आप system में थोड़ा सा involve हो जाओ, you'll understand जो work environment है, जो वहाँ का work space है, and then आपके लिए रास्ते अपने आप खुलेंगे. Okay, ma'am. Thank you. Yeah. And all the best. Nice talking to you, Anjali. मलिका, जब तक मुझे लगा कि शायद स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछा, तो मेरा एक क्वेश्चन था जो काफी साल से सबका यही स्टूडेंट का रहता है. जब वो इंडस्ट्री में आते हैं तो उनका रहता है कि सबको क्या बनना है, सब एंकर बनना है. तो एंकर डायरेक्ट बनना मुझे नहीं लगता कि उसके की जरूरत होती है. लोगों को लगता है कि सब डायरेक्ट हम एंकर बन जाएंगे. तो उसके पीछे की मेहनत क्या है, इस पर तुम थोड़ा सा बात कर सकें तो आपको बहुत अच्छा है. मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ कि मैंने आज तक अभी तक के अपने करियर में जितने भी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया है, चाहे वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो, हर कोई एंकर बनना चाहता है. बिकॉज सबको ऐसा लगता है कि ये बहुत ग्लैमरस फील्ड ऑफ वर्क है. बट आई बेग टू डिफर हियर. ऐसा नहीं है. डेफिनेटली आई मीन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आप टीवी पर आते हो, और जब आप टीवी पर आते हो तो आपको पूरा देश सुनता है, आपको बहुत घर घर आपकी रीच बढ़ती है. अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है. आई थिंक एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको लगता है, एंड यू फील फुलफिल्ड. आपको लगता है कि हाँ, दैट यू आर डूइंग समथिंग रियली गुड. बट ये यहाँ तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता है. एंड आई नो कि आप एंकर सब बनना चाहते हैं, लेकिन पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप टीवी में जिन एंकर्स को देखते हो, आप अपने आप को उनसे कंपेयर करो और आप देखो वेयर डू यू स्टैंड. क्या जो क्वालिटीज आपको उनमें नजर आ रही हैं, क्या वो क्वालिटीज आप में हैं? अगर आप उन्हें सुन रहे हो या आप उन्हें देख रहे हो, तो क्यों सुन रहे हो, क्यों देख रहे हो, आपको उनमें ऐसा क्या अच्छा लग रहा है, और आप अपने आप को उनके जैसा कैसे बना सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स सिर्फ टीवी पर देखते हैं कि अच्छा हम भी एंकर बन जाते हैं क्योंकि हम जर्नलिज्म में आ गए. एक ये भी बहुत मुझे लगता है सर, कई स्टूडेंट्स जब जर्नलिज्म की फील्ड में आते हैं तो उनमें से सिर्फ 50% होते होंगे या शायद उससे भी कम जो अपनी जर्नलिज्म के प्रति पैशन की वजह से आते हैं. कई स्टूडेंट्स इसलिए आ जाते हैं कि चलिए ठीक है, जर्नलिज्म कर लेते हैं, चलो कहीं तो ग्रेजुएशन करना है तो जर्नलिज्म में कर लेते हैं, मास कम्युनिकेशन में कर लेते हैं. फिर धीरे धीरे अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो ठीक है. मैंने अपने अब तक के करियर में मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया, फिर मैंने मास्टर्स किया. मेरे बैच के आप मान लीजिए अगर 100 स्टूडेंट्स थे मेरे साथ पढ़ रहे थे, 100 में से वी आर ओनली आई थिंक अबाउट 5 to 10 स्टूडेंट्स हु एक्चुअली मेड इट देयर. या इंडस्ट्री में मैं शायद मेरे जो फेलो स्टूडेंट्स रहे हो, मेरे क्लासमेट्स रहे, उनमें से मैं सिर्फ 4 या 5 लोगों को जानती हूँ जो आज की डेट में इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. वरना हर कोई फील्ड बदल चुका है. कोई पीआर कर रहा है, कोई इवेंट्स में चला गया, कोई मैनेजमेंट में चला गया, कोई बिजनेस रन कर रहा है. लेकिन आप इंडस्ट्री में, जर्नलिज्म में अपना नाम तभी बना सकते हैं अगर आप जेन्युइनली पैशनेट हैं, इफ यू रियली वांट टू डू इट. Otherwise, there is no way out. There is no shortcut. कुछ भी अगर आप सोचें कि आपको कोई कांटेक्ट हेल्प कर देगा या फिर आपकी कहीं पे जान पहचान है तो उसके बेसिस पे आप जगह बना लेंगे, मे भी आप बना भी लें, लेकिन आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप से पहले पूछना कि क्या मैं कमिटेड हूँ इस काम के प्रति, क्या मैं समझता हूँ या समझती हूँ कि जर्नलिज्म है क्या, कितना रिस्पॉन्सिबल काम है ये.
ऐसा नहीं है कि हम टीवी पे आए और हमने आकर के बस अपना बुलेटिन कर दिया एंड दैट्स इट. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, दैट्स नॉट हाउ इट गोज. आपको उसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपडेटेड रहना पड़ता है, आपको अपने ऊपर अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज अल्टीमेटली एक विजुअल मीडियम है. पीपल आर गोइंग टू वॉच यू ऑन टीवी, सो दे शुड लाइक व्हाट दे सी. So you really need to work on yourself, अपनी communication skills पर, अपने उच्चारण पर, अपनी pronunciation पर. आप English में जाना चाहते हैं या आप हिंदी में जाना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज पर आपकी कितनी कमांड है, आपकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग है, क्या आप एंकरिंग करते वक्त या बोलते वक्त डू यू फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करें. आपके पास नॉलेज है, आपको पता है कि क्या है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो आपको उन सब चीजों पर काम करना पड़ेगा. जब मैं स्टूडेंट थी और जब मैंने शुरुआत की थी, मैं अपने क्लास में शायद आई वाज द ओनली वन जिसका कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू स्टार्ट माय करियर एज एन एंकर ओनली. So I've never been a reporter all my life. I've always been an anchor. I started off my career as a trainee anchor with P7 News. And I know that जब मैं as a trainee वहां पर पहुंची, I was a 21-year-old girl. And मेरे आसपास जितने लोग थे, जितने एंकर्स थे न्यूज रूम में या मैं मेकअप रूम में जब जाती थी, तो सब लोग मुझसे उम्र में भी बहुत बड़े थे और एक्सपीरियंस भी उनको मुझसे बहुत ज्यादा था. तो मैं वहां पर अपने आप को बहुत लेफ्ट आउट फील करती थी, और जब मैं उनको बुलेटिन पढ़ते देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मैं कर भी पाऊंगी या नहीं. खास करके बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हिंदी के नंबर्स आते थे तो हम वहां अटक जाते थे कि अरे 88 88 होता है, 87 होता है. ये सब चीजें शुरू किया था तो मालूम भी नहीं था. और मैं आज की डेट में जितने स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, आई एम श्योर उनमें से 100 में से 90 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको हिंदी की काउंटिंग नहीं आती होगी. ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं जो हम इग्नोर कर जाते हैं अपने स्कूल ईयर्स में, कॉलेज ईयर्स में, कि हम अपनी जो लैंग्वेज है उस पर अपनी पकड़ मजबूत करें. तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है सर, जो आपका सवाल था कि एंकर बनना हर कोई चाहता है, लेकिन क्या एक एंकर बनने के लिए क्वालिटीज जो चाहिए वो आप में है, और अगर है तो आप उनको क्या एनहांस कर रहे हो, डे टू डे अपने ऊपर काम कर रहे हो या नहीं, वो बहुत जरूरी है. सिर्फ सोच लेना और चाह लेना कि हम एंकर बन जाए, उससे काम नहीं बनता है. बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कमिटमेंट है अपने साथ, अपने काम के साथ, और उसके साथ आप थोड़ा सा भी ढीला करके तो पीछे रह जाए. बात हमारी बिल्कुल सही है. शेफाली मैम, आपसे कुछ बात में रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका अगर क्वेश्चन है तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे. शेफाली मैम. Hi, I have a question. I think the questions we're having, and that is for an interview that is related with this job. So, how देखिए, आप ऑब्वियस सी बात है, अगर आप जर्नलिज्म की फील्ड में कहीं पर भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, से बीट न्यूज चैनल, बीट न्यूज पेपर, पहली चीज जो आपसे एक्सपेक्टेड होती है वो ये होती है कि आपने उस दिन का अखबार पढ़ा है. क्या पिछले 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में जो कुछ भी हो रहा है ग्लोबली, नॉट जस्ट बिकॉज आजकल आप अगर देखते हो, स्पेशली आफ्टर ये रशिया यूक्रेन वॉर, लोगों का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट बढ़ा है, लोगों का इंटरनेशनल न्यूज में कितना इंटरेस्ट बढ़ा है. आप बहुत सारे न्यूज चैनल्स देखते होंगे who are doing special bulletins on international news stories, what is happening in Pakistan, what is happening in Iran, what is happening in China. People want to know because लोगों का इंटरेस्ट अब इन चीजों में भी बढ़ा है. तो आपको अपना जो नॉलेज बेस है उस पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. आपको पता होना चाहिए what is happening around you globally. And I know humanly it's not possible for any one of us कि हमको छोटी छोटी डिटेल्स या हर चीज के बारे में that what is happening around me, what is happening in the country, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कहाँ पर क्या हो रही हैं, ग्लोबली कहाँ पर क्या इशू चल रहा है. अगर एक दुनिया का कोई एक हिस्सा युद्धग्रस्त है तो वहां पर वो जो लड़ाई हो रही है, वो जो वॉर हो रही है, वो इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करती है. यू नो ऑल दीज बेसिक थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड. आपको उन चीजों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी. इंडिया की आप चाहे आप इकोनॉमी ले लीजिए या पॉलिटिक्स ले लीजिए, सोशल इश्यूज ले लीजिए, इन सब चीजों के ऊपर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कंट्री में कौन सी स्टेट में इलेक्शंस आ रहे हैं, कौन सी स्टेट में कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सा मुख्यमंत्री है, कहाँ पर क्या चल रहा है, कहाँ पर क्या पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है. ये सब चीजें बेसिक नॉलेज मुझे लगता है कि अगर स्टूडेंट्स के पास नहीं है तो वो कभी भी अपने आप को किसी भी इंटरव्यू के लिए रेडी फील नहीं करेंगे.
तो इफ यू रियली वांट टू बी अ जर्नलिस्ट और इफ यू रियली वांट अ जॉब इन दिस फील्ड ऑफ वर्क, तो आपको अपनी नॉलेज पर काम करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप अपनी इंफॉर्मेशन कहीं से भी कंज्यूम कर सकते हैं। आपको न्यूज कंज्यूम करनी है, यू कैन ईदर वॉच न्यूज ऑन टीवी, यू कैन रीड न्यूज़पेपर्स। आजकल तो एप्स आ गई हैं, अगर आप एप्स डाउनलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशंस भी आते हैं। कोई भी बड़ी स्टोरीज हैं, बड़े इवेंट्स हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि ये तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट मेजर एस्पेक्ट हो गया अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार करने के लिए। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करती है। यू रियली नीड टू बी वेल ड्रेस्ड। आप अच्छे से तैयार होकर जाएं, अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंटली आप प्रेजेंट करें जहां पर भी। एंड वी आर ऑल नर्वस। मैं भी आज की डेट में कहूँ कि 10 साल का मुझे अब एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं कहूँ कि मैं कभी नर्वस फील नहीं करती। या फिर जो मेरे सीनियर कॉलीग्स भी हैं या जिन्होंने इंडस्ट्री में 20 साल भी बिता दिए, हम सब नर्वस फील करते हैं, बट इट शुड नॉट शो इन योर परफॉर्मेंस। अगर आप किसी के सामने बैठे हैं बात करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए, तो आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप खुलकर अपनी बात को रख सकें। तो अपने कॉन्फिडेंस पर काम करें और जितना हो सके लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, उससे बहुत हेल्प मिलती है। बिकॉज आई थिंक जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट तो आपके लिए ये फील्ड में थोड़ी सी मुश्किल आ जाएगी, खासकर टीवी में। बिकॉज यहाँ पर वही लोग काम को एंजॉय कर सकते हैं, काम में ग्रो कर सकते हैं, जिनको बात करना अच्छा लगता है, लोगों से बात करना अच्छा लगता है, या जो क्यूरियस हैं, जिनके मन में सवाल आते हैं चीजों को लेकर कि ये क्यों हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इसके बाद क्या होगा, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने अंदर वो क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ाएं। कोई चीज अगर आपने कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कहीं पढ़ी, उसको देखकर इग्नोर ना कर दें कि अच्छा ये हो रहा है, ओके छोड़ो, हो रहा होगा, क्यों हो रहा है, क्या है उसका मतलब, क्या है, उसको समझने की कोशिश करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी पर्सनालिटी पर आप काम करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर आप काम करें, अपने नॉलेज बेस को आप एनहांस करें और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को जितना हो सके बढ़ाएं। मलिका, आई थिंक स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि टीचर्स तो क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं आपके बिहाफ पे, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन पूछना चाहे आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। मलिका, मैं आपकी बात से एक बात अभी यहाँ पे कि अब जो एक दौर था टीवी जर्नलिज्म का, जहाँ पे एंकर है, टीपी है, आप सब कुछ बहुत कुछ प्लान के साथ हम लोग एंकरिंग करते हैं या जर्नलिज्म में जाते हैं, लेकिन अब ये स्विच कर रहा है मोबाइल जर्नलिज्म की तरफ, और बहुत ज्यादा न्यूज जो है वो मोबाइल, मोस्टली चैनल्स ने अपने मोबाइल ऐप्स पे ही काफी तो कितना डिफरेंस चेंज आया है, और जो नई जनरेशन जो अब इंडस्ट्री में आ रही है, तो उनको इन दोनों चीजों में प्यार करने के लिए, अपने को प्रिपेयर करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? ये जो आपने सर सवाल पूछा, ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे लोग भी जिनके पास टीवी चैनल में नौकरी है, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हम कि टीवी पर तो एक अलग फॉर्मेट होता है, नमस्कार आपके साथ में, आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, इट्स अ वेरी फॉर्मल मीडियम। लेकिन मोबाइल जो है, इट इज मोर इंटरैक्टिव। So what we try to do is that we try to do as many Facebook lives, Twitter lives as we can, so that जो हमारे viewers हैं, those who want to connect with us, उनसे हम बात कर सकें। And आपका जो न्यूज बताने का अंदाज होता है वो टीवी के लिए अलग होता है, और जब हम मोबाइल पर करते हैं या फिर आप सोशल मीडिया के लिए करते हैं वो अलग होता है, वो ज्यादा इंटरैक्टिव होता है, वो थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा कैजुअल होता है। जैसे आप बहुत सारी एप्स आज तक देखते आए होंगे, बहुत सारे चैनल्स की अब एप्स भी आ गई हैं जहाँ पे एंकर्स ऐसी कूल माहौल में बैठे हैं, इसी तरह से किसी कमरे में बैठे हैं और खबर बता रहे हैं, और वो बहुत कैजुअल कॉफी पीते पीते बताएंगे, हाथ में पेन पकड़े पकड़े कुछ कुछ लिखते हुए बताएंगे, ताकि वो एक थोड़ा कैजुअल अप्रोच आए और जो सुन रहा है उसको ये लगे कि हाँ, मैं किसी बहुत बड़े इंटेलेक्ट से बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो अपने जैसा ही इंसान है और ये मुझे खबर बता रहा है, मैं सुनता हूँ इसकी बात। और टीवी पर जब आप एक आते हैं तो टीवी पर एक अलग तरीके की प्रेजेंटेशन होती है, और उसको आई थिंक करने में, सीखने में, वो धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस ओनली यू गेट बेटर एट योर जॉब। बट आई थिंक दोनों तरीकों से अपने आप को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, और वो तभी होता है जब आप शुरू करेंगे। वंस यू आर आउट देयर, वंस यू स्टार्ट वर्किंग, तो आप हर दिन बेहतर होते जाएंगे। आप कहें कि पहली बारी ही कोई कैमरे के सामने आ जाए और वो
बहुत बढ़िया काम कर जाए, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल, कैमरा को फेस करना भी इतना आसान नहीं होता है। हमें शौक तो बहुत होता है, जब भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, तो हर कोई इसमें एंकर बनना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, नोबडी वांट्स टू बी बिहाइंड द कैमरा। बट आई थिंक अगर आपको कैमरे के सामने आने का शौक है तो वो धीरे धीरे आप उस चीज को डेवलप कीजिए। और अगर आपके पास साउंड नॉलेज होगी किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो आप उस पर, अगर आपको मैं कहूँ कि अच्छा ये इशू है, ये खबर है, इसके ऊपर आप व्यूअर्स को बताइए, तो क्या आप वो खबर 30 सेकंड में या 1 मिनट में क्रिस्प वे में स्पष्ट भाषा में बता दें कि सुनने वाला आदमी समझ जाए? यही चाहिए, यही इंडस्ट्री की आज की डेट में डिमांड है। लंबा 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 कोई सुनने का आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दो। तो जितना आप अपनी लैंग्वेज पर पकड़ अच्छी करेंगे, सब्जेक्ट की साउंड नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज आपके पास होगी, तो मुझे लगता है कि आप कम शब्दों में, आसान शब्दों में अपनी बात व्यूअर्स तक पहुंचा सकते हैं। बट हाँ, आई से कि दोनों मीडियम्स अपनी अपनी जगह हैं, और दोनों के लिए एक अलग स्किल चाहिए। Am I पीयूषा। audible? यस हाँ। पीयूषा, मैम, हाय। एक सवाल मेरा ये है, स्टूडेंट्स ज्यादातर उनको ये बताया भी जाता है और ये समझते हैं कि हमें एक स्पेसिफिक बीट पसंद है या एक स्पेसिफिक एरिया पसंद है। जैसे न्यूज रूम में किसी को एंकरिंग करना है या कोई प्रोडक्शन में जाना चाहता है या मान लीजिए कोई ग्राफिक्स में ही जाना चाहता है, लेकिन जिस वक्त वो इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो जरूरी नहीं है उन्हें उस डिपार्टमेंट में, डिजायर्ड डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप मिल जाए या डिजायर्ड डिपार्टमेंट या डिजायर्ड बीट में ही जाने का मौका मिल जाए। तो ऐसे में कई बार स्टूडेंट सोचते हैं अच्छा मुझे तो स्पोर्ट्स में जाना था लेकिन मुझे एंटरटेनमेंट मिल रही है, तो छोड़ देते हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि आप एक बार जब एंट्री लेते हैं तो सभी बीट्स में फॉर्मेट लगभग सेम होता है, तो सीखने का मौका तो कहीं ना कहीं मिल रहा है। फिर इंटरनली आप कुछ कनेक्शंस बना के, समझ के उसे स्विच कर सकते हैं लेटर ऑन। तो क्या उस केस में स्टूडेंट्स को अपनी बीट्स पर बने रहना या अपने जो डिजायर्ड उनका डिपार्टमेंट है उस पर बने रहना चाहिए, नहीं हमें वहीं जाना है? या फिर ये भी एक तरीका है कि आप हर चीज को एक्सप्लोर कर लें अगर मौका मिल रहा है तो, जिससे कि आप जिसमें जाना चाहते हैं वहां जाने में आपको आसानी हो जाए? तो इससे रिलेटेड प्लीज आप थोड़ा बताएं स्टूडेंट्स को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। पीयूषा, ये भी काफी इंटरेस्टिंग सवाल आपने मुझसे पूछा है, बीट को लेकर बहुत लोग पूछते हैं ये सवाल। तो उसमें मेरा जवाब, काफी चीजें तो आपने अपने सवाल में खुद ही एक्सप्लेन कर दी, कि अगर काम किसी फील्ड में मिलता है तो आप वो तो करते रहिए, लेकिन आप उस जगह को एक्सप्लोर कीजिए, कॉन्टैक्ट्स बनाइए, विच इज वेरी ट्रू, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट आई थिंक एक चीज मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि एक एंकर की कोई बीट नहीं होती है। Because once you are there in the studio and if there is a breaking news, वो इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया वो भी हो सकती है, मेक्सिको में भूकंप आया वो भी हो सकती है, न्यूजीलैंड में बाढ़ आई वो भी हो सकती है, नोएडा में एक्सीडेंट हो गया वो भी हो सकती है, किसी का मर्डर हो गया वो भी हो सकती है। तो अब मैं इसमें कहूँ कि यार मैं तो एंकर हूँ और मैं तो क्राइम बीट पसंद करती हूँ, तो मैं स्पोर्ट्स की खबर पे एंकरिंग कैसे कर पाऊंगी? जब वर्ल्ड कप की ब्रेकिंग आएगी तो मैं वो खबर कैसे बता पाऊंगी व्यूअर्स को? इसलिए एक एंकर के लिए कोई बीट नहीं होती है। आपका, हाँ, आपका अपना एक इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए, ये मैं जरूर मानती हूँ कि कोई ना कोई एक ऐसी बीट होनी चाहिए जिसमें आप कहो कि यस, अगर मैं एंकर हूं, मेरे साथ न्यूज रूम में 8 और एंकर्स हैं, करीना कपूर अपनी मूवी का प्रमोशन करने के लिए आ रही है और मैं बोलूं कि एंटरटेनमेंट बीट मेरा है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इंटरव्यू मुझे करना है, वहां आपको एज मिलता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बट वो भी कोई प्रॉमिस नहीं है कि मुझे ही मिलेगा। हो सकता है कि वो कहें कि नहीं नहीं यार, ये बहुत बड़ा स्टार है तो जो सबसे सीनियर एंकर है वही करेगा। दैट कुड ऑल्सो बी देयर, बट एटलीस्ट मैं ये कह सकती हूँ कि मैं अपने बॉस को जाके पिच कर सकती हूँ कि सर मैंने एंटरटेनमेंट में इतना टाइम काम किया है, मैंने एंटरटेनमेंट शोज करे हैं, सर ये मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, मैं आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस मूवी, आई नो एवरीथिंग अबाउट करीना's career, कैन आई प्लीज गो एंड डू दिस इंटरव्यू? So that way I'm pitching for an idea, I'm pitching for myself, I am asking for an opportunity. वो मुझे मिलती है या नहीं मिलती, that's another thing, but यहाँ पे आपको उस लिहाज से फायदा मिलता है। So to answer to your question, you don't necessarily be an expert of a specific beat, but ऐसी कोई एक बीट जरूर होनी चाहिए जिसमें आप ये कह सको कि हाँ मुझे इस बीट पर ज्यादा नॉलेज है औरों से, ये बीट मेरी स्ट्रॉन्ग बीट है। अगर कोई क्राइम की खबर आई है तो सर मुझसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा,
मैंने इतनी क्राइम स्टोरीज इन द पास्ट कवर की हैं। सर जब वो एक्सीडेंट हुआ था तो मैं वहां गई थी, जब वो मर्डर हुआ था, वो मैंने श्रद्धा हत्याकांड हुआ था सर, मैं फील्ड पर गई थी, मैंने रिपोर्टिंग की थी। जब वो हादसा हुआ था तो मैं वहां गई थी। तो उस चीज से आपको मदद मिलती है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और खुलती हैं या आपके लिए रास्ते और बनते हैं। बट इफ यू वांट टू बी अ रिपोर्टर तो उसमें एक स्पेसिफिक बीट होना बहुत जरूरी है। बिकॉज हर चैनल में आप अगर देखते होंगे कि जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं उनको कोई ना कोई बीट असाइंड होती है कि अच्छा आप बीजेपी के रिपोर्टर हैं, आप कांग्रेस कवर करते हैं, आप क्राइम रिपोर्टर हैं, आप स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, तो स्पोर्ट्स की कोई भी खबर कहीं पर होगी तो वही रिपोर्टर पहुंचेगा। लेकिन एंकर कौन सा जाएगा? जिसका उस फील्ड में किसी ना किसी तरीके का कोई एक्सपीरियंस है या अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। तो इसीलिए एक फील्ड को जरूर पकड़ो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। और जैसे कि आपने एक बात कही इंटर्नशिप में, अगर आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो आज मैं जी न्यूज की एक प्राइम टाइम एंकर हूँ, बट मैं यहाँ पर एक इंटर्न भी रह चुकी हूँ। तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, अपने फाइनल ईयर में थी, तब मैं जी न्यूज में मैंने 1 महीने का इंटर्नशिप किया था। एंड ट्रस्ट मी, मुझे सबसे यूजलेस काम मिला था। उस टाइम पर हमारे पास इतना हाईटेक सिस्टम नहीं था। उसमें क्या होता था, जो भी शोज रिकॉर्ड होते थे वो टेप्स में रिकॉर्ड होते थे, उन टेप्स को इंजेस्ट करने जाना होता था। तो हम इंटर्न्स को क्या करते थे, बुलाते थे, 10 टेप पकड़ा देते थे, अच्छे जाओ इसको जाके इंजेस्ट कराओ। तो वो 1 महीना मैं क्लूलेस थी कि मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ, मैं यहाँ पे टेप्स इंजेस्ट करने नहीं आई हूँ। मैंने बहुत फाइट किया अपने लिए, मैंने बहुत बोला कि सर मुझे फील्ड में जाना है, मुझे रिपोर्टिंग करनी है, मुझे रिपोर्टर बनना है। तो बहुत मुश्किल से जब मैंने गिव अप नहीं किया, तो जो मेरे इस वक्त मैनेजर थे उन्होंने मुझे फिर ये इतनी अपॉर्चुनिटी दी कि जो हमारे यहाँ पर रिपोर्टर होती थी एक वो अगर वो फील्ड पर जा रही है कोई स्टोरी कवर करने के लिए, तो मैं उनको सिर्फ एक कंपनी कर देती थी कि मैं देखती थी कि वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। तो इतना आसान किसी के लिए भी नहीं होता, मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था। जब मैं अपनी फर्स्ट जॉब में आई, ट्रेनी एंकर थी मैं P7 न्यूज में, उसके बाद मैंने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से काम स्टार्ट किया। तो जब मैं आई, मैं बिल्कुल आप लोगों की जैसी थी, 22-23 साल की यंग लड़की। तो कोई मुझ पर उतना ट्रस्ट नहीं करता था कि यू नो दे डिड नॉट हैव द ट्रस्ट इन मी कि मैं कोई बड़ी स्टोरी हैंडल कर पाऊंगी या नहीं। तो मुझे उन्होंने बाय डिफॉल्ट एंटरटेनमेंट में डाल दिया कि अच्छा अभी आप एंटरटेनमेंट से शुरू करो, अभी एंटरटेनमेंट करो। आई टुक इट एज अ चैलेंज। मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, अगर आपको लगता है कि मैं एंटरटेनमेंट कर सकती हूँ। तो मैंने एंटरटेनमेंट में वहां पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मैंने एक शो लिया, और हाफ एन आवर का वो शो था। उस शो को प्रोड्यूस भी मैं करती थी, उसके एंकर लिंक से लेकर उसका पैकेज में लिखती थी, उसके वॉइस ओवर्स मैं करती थी, उस शो को प्रेजेंट भी मैं करती थी। उससे मुझे क्या फायदा हुआ, मैंने हिंदी टाइपिंग सीखी, मेरी हिंदी टाइपिंग बहुत फास्ट हो गई, मुझे लिखना आ गया कैसे लिखते हैं, कि जो मेरे थॉट्स हैं उनको शब्दों में पिरोना, उनको लिखना कैसे उसको करना है, वो मैंने स्ट्रेंथ हासिल की। मेरी वॉइस ओवर्स बेटर होते गए। उसके अलावा बुलेटिन, कैमरा के सामने अपने आप को फेस करना, बुलेटिन कैसे पढ़ना है, बॉडी लैंग्वेज कैसे होना चाहिए, ये सब मैंने धीरे धीरे सीखा। फिर जब मैंने कुछ महीने एंटरटेनमेंट का वो शो बनाया, काम किया, मैं फिर पीछे पड़ गई अपने मैनेजर के, सर मुझे न्यूज करनी है, न्यूज करनी है, न्यूज करनी है। तो वो मुझे बोलते थे अच्छा करो करो, जो कर रही हो वही करो, अभी कर तो रही हो, अच्छा कर रही हो, अच्छा कर रही हो। मैंने कहा सर मुझे मौका तो दो, मौका तो दो प्लीज मेरे को आप। फिर बहुत लड़ाई लड़ने के बाद मुझे फिर न्यूज बुलेटिन मिलने शुरू हुए, एंड आज मैं यहाँ पर हूँ। तो ऐसा नहीं होता है कि आपके लिए बहुत आसान होगा, लोग आपको डाउट करेंगे, क्योंकि ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। आप सोचो आप टीवी पर आ रहे हो, आपको कितने लोग एक टाइम पर सुन रहे हैं, आपके मुंह से अगर एक शब्द गलत निकल गया या आपने कोई भी फैक्चुअल मिस्टेक कर दी, सो नॉट जस्ट यू विल गेट इनटू ट्रबल, ऑल्सो योर मैनेजर एंड ऑल्सो योर चैनल विल गेट इनटू ट्रबल। सो इसीलिए मुश्किल होता है, इट इज वेरी चैलेंजिंग। बट आई होप मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया कि कहीं पर भी इंटर्नशिप करने जाओगे, ऐसा नहीं है कि जो मुंह से बोलोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा पहले उसको इतना अच्छे से करो कि सामने वाला इंसान आप पे ट्रस्ट करने लगे, दैट यस ये यहाँ पे मस्करी करने नहीं आया है, वो यहाँ पर जेन्युइनली कुछ करने और सीखने आया है। उसके बाद सामने से भी आपको मदद मिलेगी। अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है, आप मेहनत करना चाहते हो, ऑनेस्ट हो, तो आपको जरूर मौका मिलेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ। मल्लिका, मेरे पास ना एक चैट पर एक क्वेश्चन आया, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, मेरे को देख के बड़ा सरप्राइज हो गया कि आई थिंक किसी लड़के का ही होगा वो। उसका कहना है कि जो एंकरिंग में मोस्टली जो प्रेफरेंस दी जाती है गर्ल्स को दी जाती है, तो बॉयज कैसे प्रिपेयर करें भाई अपने लिए? सॉरी टू ब्रेक हिज हार्ट, बट यू आर राइट। लड़कियों को ज्यादा प्रेफरेंस मुझे लगता है सर, ये
इसका कोई सीधा जवाब नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह सकती कि लड़कियों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, बट आप देखिए ना सर, आप दौर देखिए हम कहाँ से कहाँ आ गए। एक वक्त ऐसा था जब टीवी इंडस्ट्री को सिर्फ आदमी रूल करते थे, हर बड़ा चेहरा, हर बड़ा एंकर आदमी ही होता था। बट ओवर द इयर्स ट्रेंड ऐसा बदला कि आज आप देखिए जितनी भी लीडिंग एंकर्स है सब फीमेल्स हैं। अब उसके पीछे वो बदलाव कैसे आ पाया? वो बदलाव इसलिए आ पाया क्योंकि ऑडियंस ने, व्यूअर्स ने उस बदलाव को चाहा और उस बदलाव को एक्सेप्ट किया। अगर ऑडियंस चाहेगी कि नहीं भाई मैं तो इस लड़की को सीरियसली नहीं ले पा रहा हूँ, शी इज जस्ट टू प्रिटी टू बी यू नो अ न्यूज एंकर, या शी इज जस्ट अ ब्यूटीफुल फेस एंड शी डजंट हैव एनी नॉलेज, ये क्या बोल रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऑडियंस आपको रिजेक्ट कर दे तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मुझे ऐसे देखे कि नहीं यार ये तो दिखने में भी बहुत अच्छी है और ये तो खबर भी बहुत अच्छे से बता रही है, एंड आपको टीवी देखने का एक्सपीरियंस आपका अच्छा हो रहा है या आपको वो न्यूज में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है इसीलिए वो ट्रेंड बदला है। और आई थिंक दिस इंडस्ट्री लाइक एनी अदर इंडस्ट्री, इट्स एन एवर चेंजिंग मीडियम। आज हम जो बात कर रहे हैं हो सकता है कि कल वो इररिलेवेंट हो जाए, हो सकता है 10 दिन के बाद हम जिस टॉपिक पे आज बात कर रहे हैं वो टॉपिक का कोई रेलेवेंस ही ना रहे, हमें लगे यार इस पे बात करने से क्या फायदा, कुछ नया आ जाए। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि हाँ आज की डेट में आई वुड से दैट ऑल लीडिंग न्यूज एंकर्स दे आर ऑल फीमेल्स, पर ऐसा नहीं है कि मेल एंकर्स वो चीज एंजॉय नहीं कर रहे। वो अभी मेल एंकर्स भी बहुत सारे हैं इस इंडस्ट्री में जो आप कह सकते हैं कि लीडिंग फेसेस ऑफ द इंडस्ट्री हैं। बट यस, आई वुड से दैट दिस इज अ गुड थिंग कि लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, खासकर मॉर्निंग बैंड में। मॉर्निंग में आई थिंक हर चैनल की डिमांड है कि फीमेल एंकर को रखा जाए। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं भी नहीं समझती। मुझे जितना अभी तक समझ में आया है उनका ये मानना है, जो मतलब जो हायर करते हैं उनका ये मानना है कि ठीक है, यू नो एवरीबडी वांट्स टू वॉच अ प्लेजेंट फेस एंड यू नो प्लीजिंग पर्सनालिटी इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह में कोई आकर कोई चिल्लाए, जोर जोर से खबर सुनाए, आपको पसंद नहीं आता है। तो आई थिंक इट ऑल हैज टू डू, आई थिंक ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सिर्फ लड़कियों के लिए है। लड़कों के लिए डेफिनेटली चैलेंजिंग थोड़ा ज्यादा है आजकल के वक्त में, इसको मैं डिनाई नहीं करूंगी, थोड़ा सा ज्यादा है, लड़कियों को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है। लेकिन जो बात मैंने पहले कही थी कि अगर आप अपनी पर्सनालिटी पे काम करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बीइंग अ गाय यू विल हैव एनी लेस अपॉर्चुनिटीज देन अ गर्ल। सो या मुश्किल है ये सवाल, क्योंकि देखिए ये मेरे हाथ में या हम में से किसी के हाथ में नहीं है कि हम किसको प्रेफरेंस दे किसको नहीं। बट हाँ आजकल मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों के लिए थोड़ा ज्यादा बेटर है। I think the student must have got his answer कि लड़की को प्रेफरेंस मिलता है या लड़के को मिलता है, बट मेहनत से कुछ भी अचीव किया जा सकता है। डेफिनेटली, Yes. आई नो। So thank you, ma'am, for such insightful answers to all our questions. Thank you so much. I would now request Dr. Sushmita Bala, Head DME Media School, to give the concluding remarks. Thank you, Shefali. Thank you, Malika, for your session. Actually, यहाँ जो बात अभी तक हुई उस पर मैं यही बताना चाहती हूँ कि मलिका ने बहुत सारे उन्हीं पॉइंट्स को उठाया कि आपको स्किल स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको अपना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे काम करना है। सेम जो अगेन एंड अगेन हम बात करते हैं, इफ यू आर एंकर तो आपको अपनी लैंग्वेज पे काम करना है, आपको उन वर्ड्स को, उनको प्रोनाउंसिएशन को उसको देखना है कि हाउ टू स्पीक, हाउ टू प्रोनाउंस। क्योंकि जो हम इसके न्यूमेरिटी की बात की कि हमें 88 को 88 बोलना आता है या नहीं, 88 फिर भी बोल लेंगे, 89, 79, 49 ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं। तो और अगर आप बात करें कि सिटी के नेम्स गलत बोलते हैं स्टूडेंट, तो वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए थोड़े से एफर्ट्स की जरूरत है। ऑब्वियसली शॉर्टकट नहीं है, जो अभी मलिका ने बताया कि नोट शॉर्टकट, हमें उसके लिए प्रॉपर तैयारी करनी है, प्रॉपर नॉलेज लेवल बढ़ाना है और स्टूडेंट को इसलिए थोड़े से एफर्ट्स की जरूरत है, थोड़ा काम करने की, पॉलिशिंग की जरूरत है इसमें। क्योंकि डे टू डे बेसिस पे अगर आप काम कर रहे हैं, आप कितना काम कर रहे हैं, कितने हार्ड वर्किंग है, कितना नॉलेज लेवल आपका है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सेशन काफी अच्छा रहा और जो स्टूडेंट इसको प्रॉपरली सुन रहे होंगे तो मुझे लगता है कि उन्होंने काफी कुछ
समझ लिया होगा, सीख लिया होगा और वो इस पे काम करना शुरू कर देंगे। तो अगर बेस्ट करना है तो अपना नॉलेज लेवल एक्चुअली बढ़ाना पड़ेगा, और विदाउट नॉलेज आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। सो न्यूज़पेपर पढ़ना या न्यूज़ देखना, अपने को अपडेट रखना, ये सारी चीजें काफी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो थैंक यू मलिका, थैंक्स फॉर दिस सेशन। ओके, थैंक यू मैम। और जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगी कि मैंने इंडस्ट्री में अब तक जितने हमारे देश के लीडिंग चैनल्स हैं, एबीपी न्यूज, आज तक एंड नाउ जी न्यूज, 3 बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है। और हर चैनल में जब मैंने अपनी इनिंग स्टार्ट की या अपने करियर को एक नई डायरेक्शन दी, सब जगह मैंने एक कॉमन चीज देखी कि हर चैनल में सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्किंग लोगों की जरूरत है और उन्हीं के लिए जगह है। जहां पर भी आपने अपने काम के साथ चीटिंग करने की कोशिश की या आपको लगा कि यार आप लेजी हो गए या आपने अपने एफर्ट्स में कमी डाल दी, तो कोई ना कोई आपकी जगह ले जाएगा। और ये तो स्टूडेंट्स हैं, अभी इन्होंने अपना करियर स्टार्ट करना है, तो मैं सबसे यही कहूंगी कि पहले तो आप अपने आप से पूछें कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, इंडस्ट्री में अपनी जगह कैसे बनानी भी है या नहीं बनानी है। अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहें, पढ़ाई को बिल्कुल लाइटली ना लें। ग्रेजुएशन में ऐसा नहीं कि बस कॉलेज गए, मस्ती करके बंक मार के वापस आ गए। अपने पढ़ाई को बहुत सीरियसली लें, और खासकर जो भी प्रैक्टिकल्स आपके होते हैं उनको कभी मिस ना करें। आई थिंक वो एक ऐसी नॉलेज है जो आपको हमेशा हमेशा काम आएगी, तो बिल्कुल मिस ना करें। और जितना मैंने आपकी प्रेजेंटेशन में देखा, आई थिंक यू ऑल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। जर्नलिज्म कोर्स के लिए, मास कम्युनिकेशन कोर्स के लिए जिस तरह की करिकुलम की जरूरत होती है, यू आर ऑफरिंग दैट टू द स्टूडेंट्स, and I hope they make the most of it, and I would like to wish all the students the very best for their future. I hope सब बहुत अच्छा काम करें और कभी साथ काम करने का भी मौका मिले। And thank you all of you. It was lovely meeting you all. Thanks for having me. Vishal sir, thank you for inviting me. It was a great session. Sahai, Assistant Assistant Cell, to give the vote of thanks. Thank you. थैंक यू शिफाली मैम। हमेशा मुझे वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए बोला जाता है, तो मैं बड़ा टेंशन में आ जाता हूँ, वोट ऑफ थैंक्स दूँ तो किसको दूँ। और तो अभी आपने जब बात शुरू करी तो मेरे जहन में आया था जब अमरीश सर ने हमें सीएमएस के लिए, हम लोग ने जब प्लानिंग कर रहे थे अमरीश सर से पूछ के, तब कि मल्लिका को हमने बुलाने के लिए सोचा कि नहीं बेटा हम मल्लिका को बुलाएंगे। तो मल्लिका ने एक बात बोली थी कैंपस इंटरव्यूज में जब इसका सिलेक्शन हुआ था पहली बार, मुझे आज भी याद है, मंडी हाउस पे इसका फोन आता है कि सर क्या करना है। तो P7 में विनोद जी थे, वहां पे इसका इंटरव्यू हुआ था और टॉप इंस्टीट्यूशंस में ये था। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ यहाँ पर कि अभी 6 जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट जॉब के लिए जाने वाले, इतना हार्डवर्क की बात मल्लिका ने करी थी, तो इसका फोन आता है कि सर अभी एक लड़की आईएमसी से है और एक मैं हूँ, अब क्या होगा। तो मैं कहा टेंशन मत लो, हो जाएगा अच्छे से। 1 घंटे के बाद फोन आता है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। कहने का मतलब यह है कि जो हार्डवर्क की बात बोली थी मल्लिका ने अभी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको हार्डवर्क करना है। और देखो मल्लिका ने भी बोला हिंदी टाइपिंग बहुत जरूरी है, बाला मैम और मैं कह के थक गए कि हिंदी टाइपिंग बहुत जरूरी है, कि आपको बाइलिंगुअल होना पड़ेगा। देखो अब बाहर से हमारी बात चलो आप मानते चलो, घर की कोई बात की, घर वाले कहते रहते, हमने बाहर वाले से कहलवा दी कि हिंदी बड़ी जरूरी है, हिंदी टाइपिंग बड़ी जरूरी है, उसके बगैर कुछ नहीं, आपको रिपोर्ट खुद लिखनी। तो मल्लिका ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेनिंग एंड द प्लेसमेंट एंड पूरे डीएमई फैमिली की तरफ से थैंक यू वेरी मच। आई नो कि तुम्हारा 5 o'clock बुलेटिन है और 6 o'clock 6 o'clock बुलेटिन है, और अनफॉर्चुनेटली हमने इसलिए ऑनलाइन किया कि तुम्हें भागा दौड़ी से बचाया जा सके, क्योंकि तुम फिर आओ फिर, क्योंकि आजकल ट्रैफिक बहुत जरूरी हो गया है। और तो ये जो सेशन था बहुत ही इंटरेक्टिव रहा और बहुत अच्छे से आपने इस चीज को बताया, तो मैं सबकी तरफ से थैंक यू वेरी मच। और बाला मैम और अमरीश सर का हमेशा गाइडेंस हमको मिलती रहती है ट्रेनिंग ऑफ प्लेसमेंट सेल को, तो आई थिंक ये कंटिन्यू। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शिफाली मैम for anchoring, thank you Priya and all recording team, all the technical team जिन्होंने support किया, thank you very much।
Thank you all. Thank you. The first impression that comes to our mind about any college: tall buildings, big classrooms, large lobby areas, thick books, IT labs, assignments, class tests, and projects. Nothing besides that. Every hour, minute, second spent here help us carving and shaping our persona, cultivating innovative mindsets for the challenging world. Learning is a lifelong process. Sharing knowledge, inculcating values of life, spark the innovative horizons of mind. Fun and frolic is the nature of every nook and corner here. A daily dose of thrill we are sure to get here.